critical angle and total internal reflection. ICC boards and also for the CBSE boards, this question is very important. So सब तो पहला ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾਸ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 10 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰੀਫਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਰੇਅਰ ਐਂਡ ਡੈਂਸਰ ਮੀਡੀਅਮ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕੀ ਹੈ। ਜਦ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਸਾਡੀ ਡੈਂਸਰ ਤੋਂ ਰੇਅਰ ਵੱਲ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨੋਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਟ੍ਰਿਕ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, DR इज इक्वल टू AM, ठीक है। जो एक्चुअली मैं ये वास्ते जो ट्रिक बनाया है वो है साडा डॉक्टर अन्ना, दैट इज फ्रॉम डेंसर टू रेयर जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो जा रही है फ्रॉम अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल मींस AM। सिमिलरली अगर कोई भी लाइट आ रही है फ्रॉम रेयर टू डेंसर आ रही है, मतलब की हो गया साडे कोल टूवर्ड्स द नॉर्मल हो गया। सो एक बार मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जिदा हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜੋ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦੀ ਸਾਡੇ ਫਰੋਮ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਮੀਡੀਅਮ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਕੋਈ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਡੈਂਸਰ ਟੂ ਰੇਅਰ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨੋਰਮਲ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਟ੍ਰਿਕ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਵਨ ਕਿ ਨਿਊਮੈਰੀਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰਹੇਗੀ ਇਸ ਟ੍ਰਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਟ੍ਰਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਅਗਰ ਆਰਡੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਡੀ ਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ। CBSE वालों ने किताब हैगी RD शर्मा एंड वो बच्चों को एक्चुअली वो किताब लगती है टेंशन ही है। सो ਉਹਦੇ ਲਈ मैं एक ट्रिक बनाता है RD टेंशन ही है, दैट इज फ्रॉम RD मींस रे टू डेंसर, दैट इज टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये स्टूडेंट्स ਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ आई थिंक कोई भी डायग्राम कोई भी न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं है पेपर सॉल्व करना। सो ਆਪਾਂ करते हैं स्टार्ट करते हैं साडे क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल इज बेसिकली defined as is the angle of incidence in the denser medium, देख लो जी, angle of incidence in the denser medium corresponding to which the angle of reflection in the rarer medium is 90 degree, ठीक है। corresponding जो साडे जो angle बनता है 90 डिग्री ਦਾ बनता है, देख ਤੁਸੀਂ देख सकते हो ਉੱਥੇ, ठीक है। हम ਅਸੀਂ समझने की कोशिश करेंगे। नॉर्मल सी एक लाइन ड्रॉ करती है इंसिडेंट टू रिफ्लेक्टेड रे, जो रेड बाहर निकल रही है, ठीक है। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਹੈ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਅਗਰ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਐਂਗਲ ਗ੍ਰੇਟਰ ਦੈਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੈ ਕਿੱਦਾਂ ਮੂਵ ਕਰੇਗੀ, ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨੋਰਮਲ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਇਨ ਦਿਸ ਡਾਇਗਰਾਮ ਆਲਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਡਰਾਨ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਜੀ ਸਾਡੀ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਵੇ ਫਰਮ ਦ ਨੋਰਮਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ ਜਦ ਮੈਂ ਐਂਗਲ ਆਫ ਇਨਸੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ, एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ज्यादा इंक्रीज करता है, उस टाइम मेरा क्या हो जाएगा जो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है वो बिल्कुल स्ट्रेट आ जाएगा। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, जब मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा इंक्रीज करता तो मेरा एंगल ऑफ जो रिफ्लेक्शन है वो कितना आ जाएगा, बिल्कुल सेम प्लेन के ऊपर आ जाएगा। उस चीज में कहना है ग्रेजिंग इमरजेंस, की कहना ग्रेजिंग इमरजेंस, जिदे विच मेरा क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आता है, ठीक है। एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना जब मैं इंक्रीज करता रहा मेरा रिफ्लेक्शन उसी तरह थले नो इंक्रीज करता रहा, एक पॉइंट इतना जाएगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन के ऊपर वो चीज आ जाएगी जिन्होंने मैं की कहना ग्रेजिंग इमरजेंस। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ क्वेश्चन पूछा ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਕਿ ਜਦ ਇਹਦੀ ਰੇ ਆਫ ਲਾਈਟ ਹੋਰ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਜੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਅਗ ਦੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस ਹੋਰ ਤੇ इंक्रीज करता ਤੇ जो रिफ्लेक्शन मेरा जो पॉइंट मेरा जो ग्रेजिंग इमर्जन शो कर रहा है बिल्कुल सीधा 90 डिग्री का, वो मेरा की कर देगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कर देगा। जो कि ਅਸੀਂ ऊपर कंसेप्ट पढ़ रहे सारा रिफ्लेक्शन का, इतने की होगी साड़ी रिफ्लेक्शन होगी, ठीक है जी। बस इन्हों ये है कि सिंपल ही है एंगल ऑफ इंसिडेंस से इंक्रीज करी जाना, साਡਾ रिफ्लेक्शन है वो भी साਡਾ इंक्रीज करते रहना। एक पॉइंट इदा का आएगा पहले शो करेगा ग्रेजिंग इमर्जेंस, जिदे आप थोड़ी जिहा होर वधाता बिल्कुल थोड़ा जिहा एंगल ऑफ इंसिडेंस होर इंक्रीज करता तो जो मेरा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होएगा वो थोड़ा सर थले आ जाएगा। एंड इस सिस्टम ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਟੋਟਲ ਇੰਟਰਨਲ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਦ ਪੂਰੇ ਜੋ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਮੀਡੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜੋ ਲਾਈਟ ਹੈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਜਾਵੇ, ठीक है। मैं एक बार कंसेप्ट पूरे के पूरे दोबारा रिपीट करूंगा। एक आप रे ऑफ लाइट लेती है दैट इज मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो मैं दसता है ट्रिक की है डॉक्टर अन्ना DRAN,
ठीक है, मतलब रे ऑफ लाइट अवे नॉर्मल मूव करेगी। अगर मेरा मीडियम होता फ्रॉम रे टू डेंसर तो कितना कर दी मेरी मूव फ्रॉम टूवर्ड्स द नॉर्मल, कितना मूव कर दी फ्रॉम टूवर्ड्स द नॉर्मल। सो जिदे से मूव करते हैं तो साढ़े एक पॉइंट आता है ग्रेजिंग मर्सन का, उस तो बाद साढ़ा किहड़ा पॉइंट आता है, अगर वो डिलीट करता है तो एंगल ऑफ जो साड़ी जो रे है रिफ्लेक्शन की वो थले मूव करेगी, वो की बेसिकली बन जाएगी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करेगी। हुण पेपर ਦੇ क्वेश्चन आता है कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशंस की व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ कि जो अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज करते हैं तो वही साड़ा की करे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन शो करे, मतलब रे ऑफ लाइट बेंड हो जाए थले में। सो पहली कंडीशन है द रे ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम डेंसर टू मीडियम टू रेयर मीडियम। तो मैं पहले दस चुका क्रिटिकल एंगल के कंसेप्ट ਦੇ ਵਿੱਚ हमेशा रे ऑफ लाइट कितना मूव करेगी फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। ये हो गया साडा पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितों ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल तो, कितों ग्रेटर होना चाहिए क्रिटिकल एंगल तो। ऊपर देख लो इतने क्रिटिकल एंगल जा सेगा, इतने भी जा सेगा। अगले कंसेप्ट में की आ गया क्रिटिकल एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया, पर जदों आप एंगल ऑफ इंसिडेंस इंक्रीज किया तो क्रिटिकल एंगल साडा डिक्रीज कर गया। ठीक है, उन्हें साडा की हो गया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, मतलब एक ही मीडियम दे विच जो डेंसर मीडियम सीगा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ रे ऑफ लाइट आ गई। ठीक है जी, सो ये अपना कंसेप्ट सीगा क्रिटिकल एंगल। ठीक है, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ अपनी किताब ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 1, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੇਸ ਨੰਬਰ 2 ਐਂਡ ਦਿਸ ਥਰਡ वन इज अ केस नंबर 3। सो आफ्टर क्रिटिकल एंगल ਅਸੀਂ जो अगला कंसेप्ट अपना करांगे, ये भी रिलेशन पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब रे ऑफ लाइट साडी ग्लास तो एयर में मूव कर रही है उस टाइम साडा रिलेशन की बनेगा sin c इज इक्वल टू 1/n डेंसर टू रेयर मीडियम। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ पेपर ਦੇ ਵਿੱਚ बेसिकली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਈ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ हैं, ਕਈਆਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ μ एंड in some books it is given as n। सो इसी करके मैं इतने लिखा है n sin c is equal to 1/n डेंसर टू रेयर मीडियम। ठीक है जी, एंड साडा फॉर्मूला बन गया c is equal to sin इनवर्स, साइन अगर मैं उत्थे ले जावां c is equal to sin इनवर्स 1/n फ्रॉम ग्लास टू एयर। डेंसर मीडियम ग्लास है एंड रेयर मीडियम की है एयर। कुछ इधर रिलेटेड आप कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे इस रिलेशन के अकॉर्डिंग। रिलेशन से याद रखना c is equal to sin इनवर्स 1/n ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल अपना वाटर रिस्पेक्ट टू एयर इज गिवन इज 4/3। साइन c इज इक्वल टू 1/, मैं वैल्यू पुट कर दूंगा 4/3 थी, 3 ऊपर चला गया। ठीक है, दैट इज 3/4 बन गया। अगर मैं साइन नु दूसरे साइड लेके जाऊंगा राइट हैंड साइड, इट बिकम्स साइन इनवर्स 3/4। अप्रॉक्सीमेटली वी विल गेट द वैल्यू 49 डिग्री साडी जो वैल्यू आ गई थे। एंड ऑन द अदर हैंड जब मैं देखदा अगले क्वेश्चन दे विच रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो हैगा साडे कोल गिवन हैगा ग्लास रिस्पेक्ट टू एयर इज 3/2। ठीक है, वैल्यू मैंने पुट कर दी है, दैट इज साडा आंसर आ गया 2/3। सो सी साडी वैल्यू नहीं आ गई sin इनवर्स 2/3 अप्रॉक्सीमेटली 42 डिग्री। सो इथों ਆਪਾਂ ਕੀ ऑब्जर्व कर रहे हैं दोनों न्यूमेरिकल्स ਦੇ ਵਿੱਚ 4/3 मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली जो साढ़े को वैल्यू है 4/3 जैसी वैल्यू करते हैं दैट इज 1.33 है। ठीक है, 4/3 दैट इज इक्वल टू 1.33 एंड 3/2 की है बेसिकली 1.5। सो जिस तरह मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नु इंक्रीज कर रहे हैं, जिस तरह मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नु इंक्रीज कर रहे हैं, मेरा जो c है क्रिटिकल एंगल है वो मेरा डिक्रीज कर रहे हैं। देख लो थे वैल्यू इज 1.5, क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री, वैल्यू इज 1.33, क्रिटिकल एंगल की वैल्यू 49 डिग्री। ठीक है, नाल इस कंसेप्ट नु देखते रहो एंड प्रॉपर्ली किताब में पढ़ लो। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल, द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रिटिकल एंगल। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट जो तुम याद रखना पैना दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अफेक्ट कर रहे हैं
represented by mu, and in some books it is represented by n. So point याद रखियो, अगर साडा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होएगा, मतलब कि अगर म्यू की वैल्यू एन की वैल्यू ज्यादा होएगी तो साडी जो स्पीड होएगी दैट इज, या फिर आप कह सकते हैं क्रिटिकल एंगल की जो वैल्यू होएगी वो साडी की होएगी, घट होगी। ठीक है जी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा क्रिटिकल एंगल की वैल्यू उन्नी ही घट। ये साडा हो गया पहला फैक्टर, इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अनदर फैक्टर साडा टेंपरेचर। टेंपरेचर ना की इफेक्ट पेगा, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ क्रिटिकल एंगल ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कंसैप्ट ਹੁਣੀ करवा के हटिया ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ लाइट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, डेंसर टू रेयर मीडियम। अगर टेंपरेचर इंक्रीज करता, टेंपरेचर इंक्रीज करता तो वो जो डेंसर मीडियम है वो की बन जाएगा, रेयर मीडियम बन जाएगा। टेंपरेचर इंक्रीज करने के नाल ਤੁਹਾਨੂੰ पता है मॉलिक्यूल्स ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करनी है एंड जो मीडियम जो डेंसर मीडियम ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਡਾ रेयर बन जाना। ठीक है, सो अगर रेयर बन देना साडा की होना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की होना डिक्रीज कर देना। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही डिक्रीज कर गया, ऊपर तो नहीं बना गेटे हैं तो क्रिटिकल एंगल की होना वो साडा इंक्रीज कर दिए। ठीक है जी, सो एक तरह से टेंपरेचर इंक्रीज करने के नाल की होना बेसिकली जो डेंसर मीडियम है वो रेयर बन जाना। उस तो बाद की होना साडा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट जाना, इट विल डिक्रीज एंड ऑन द अदर हैंड साडा क्रिटिकल एंगल साडा इंक्रीज कर जाना। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड पॉइंट ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। चैप्टर एक्चुअली बहुत ईजी है, नियर अबाउट 7 to 8 जो मार्क्स अभी पेपर है जो आंदा है एंड शायद इस साल कुछ ज़्यादा आवे पेपर एंड कुछ पता भी नहीं है कि जो लैवल है थोड़ा इस बार एग्जाम का वो किस तरह का आवे। बिकॉज ऑफ द कोविड-19 काफ़ी प्रॉब्लम पै रही है बच्चों को पढ़ने के। सो मैं तुहानूं यही गल कहूँगा कि नाल जो मैं कंसैप्ट तुहानूं करवा रहा है इनू एक बार प्रॉपरली नाल करते रहो बुक के। सो साडा थर्ड आंदा है वेवलेंथ। वेवलेंथ इंक्रीज करेगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करेगा, क्रिटिकल एंगल इंक्रीज करेगा, सिंपल। फोर्थ पॉइंट कलर। अगर मैं तुम्हें एक कंसैप्ट करवाने तो बाद प्लीज तुम मैनू अपने फीडबैक दियो कितने मैनू अगर कुछ चेंज करना हो, कुछ भी चीज़ करना हो, मैंने जरूर फीडबैक दियो मैं किस तरह तुहानूं करवा रहा। ठीक है, मैं अपने होर सुधारने की कोशिश करूँगा एंड तुहानूं होर वधिया कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह नाल तुहानूं मैं दिंदा रहूँगा एंड तुसीं नाल अपना तैयार करते रहो टॉपिक। सो साडा फोर्थ जिहड़ा पॉइंट है साडा कलर है। तुहानूं पता रेनबो च किहड़े कलर होंदे हैं, विबग्योर। ठीक है, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली दी कितनी वैल्यू होंदी है वेवलेंथ दी 400 नैनोमीटर, 800 नैनोमीटर। ठीक है, एग्जाम अगर यदि वैल्यू पूछनी वेवलेंथ तो याद होनी चाहिए। विबग्योर बेसिकली जो वॉयलेट है 400 नैनोमीटर एंड ऑन अदर हैंड रेड 800 नैनोमीटर की वेवलेंथ होंदी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सो इस डायरेक्शन वाल साडे आप देख रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मेरी जो वेवलेंथ है वो इंक्रीज कर दी है। ठीक है जी, जिहदी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा होगा। हम दोनों पेपर क्वेश्चन आ जाए फ्रॉम रेड एंड वॉयलेट सब तो ज्यादा क्रिटिकल एंगल किधर है, सिंपली तुम ऊपर कर चुके हो। जिहदी वेवलेंथ ज्यादा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स घट, उसका क्रिटिकल एंगल ज्यादा। सो रेड दी वेवलेंथ जो है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू वॉयलेट। ठीक है, क्योंकि क्रिटिकल एंगल जो है साडा रेड कलर का वो ज्यादा है एंड ऑन द अदर हैंड वॉयलेट का क्रिटिकल एंगल कट होएगा क्योंकि जो वेवलेंथ साडी कट है।